of the Cyber Shakti Digital Safety and Cyber Awareness for Women by Project Cyber Shield, an initiative of Naksh Foundation. I am Anita, and it is truly a pleasure to host today's session with all of you. Over the past few days, we have explored communication, leadership, and digital awareness and cyber practices. Today, we move into another extremely important dimension of digital safety: understanding our legal rights, workplace safety laws, and child protection frameworks in online and offline spaces. In today's world, awareness of the law is no longer optional. Whether it is online harassment, cyberbullying, workplace misconduct, misuse of personal information, or threats faced by children in digital spaces, knowing our rights empowers us to respond with confidence instead of fear. And honestly, half of the problems in their life start with people thinking that this is normal. Today's session is here to remind us that many things we actually ignore are violations we have, and we have rights to speak against it. For women, especially, legal awareness becomes a form of protection and empowerment. Understanding laws like POSH and POSCO not only helps us recognize unsafe behavior but also enables us to support others, build safer environments, and encourage accountability in institutions and digital communities. If you're excited for today's session, type strong and aware. To guide us through with this incredibly meaningful session, we are honored to have with us an accomplished legal professional and rights advocate, Advocate Durga Bharadwaj. Ma'am is practicing advocate before the Supreme Court of India, the High Court of Delhi, trial courts, consumer forums, and labor courts, with active experience in civil rights, criminal, and matrimonial legislation. She is a dual certificate POSH trainer and certified POSCO trainer, regularly conducting capacity building and legal awareness sessions on workplace sexual harassment and child protection laws for institutions and non-profit organizations. She also serves an external member of the POSH Internal Committee across multiple corporations. She is the founder of Cherished Rights Consortium, a policy and research-oriented think tank working towards strengthening women and children's rights through legal reforms, research, and advocacy. In 2024, she was appointed as the Amos Curiae by Honorable Supreme Court of India and honored by K.G. Balakrishnan for her contributions to child protection laws and right-based legal interventions. We are truly honored and delighted to have you with us, ma'am, today. Without a further ado, I would like to hand over the mic to you. Thank you so much, Manyata, for such a lovely introduction. To begin with, first, can someone tell me whether I'm visible and audible, perfectly audible and perfectly visible? Manita, am I perfectly audible and perfectly visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, another thing before starting with the session is that I want to know whether or not you all want me to continue the session in English, or if in case you want me to switch to Hindi, or if you want me to conduct the session in a bilingual language so that it gets more interactive for you all. We just do not make this a monotonous in a session wherein I just speak and you all just listen, turn off your mics. Whatever works out for you all, please let me know. I will continue the session accordingly. Both languages. So what I'll do is I'll be bilingual. I'll be speaking both English and Hindi so that you all understand and grasp the contents of my session more thoroughly, because in English it gets little monotonous. I'll just speak and you'll just listen. So I'll share my screen. Is it visible? Can someone confirm? Yes, ma'am, it's visible. To begin with, we are going to have a session upon legal rights and complaint mechanisms. So you must all have been seeing कि आजकल हमारी society में there's been an increase in cyber related crimes, right? कुछ टाइम से बहुत cyber related crimes के if in case
आप लोग अवेयर होंगे, आप न्यूज देख रहे होंगे, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ फाइलिंग केसेस where their rights have been infringed, and somewhere or another their money have been usurped by cyber fraudsters, or their pictures are being used in deepfake alternatives and other cyber related offenses. तो ये अचानक से सर्च कैसे हो गया, मतलब अचानक से बढ़ कैसे गए साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस? कैन समवन आंसर दैट क्वेश्चन? Anyone from the audience, everyone who has joined in, if anyone wants to unmute and answer this question, we are going to make it a very interactive session. Monotonous नहीं रखेंगे, interactive session रखेंगे. मैं कुछ questions pose कर रही हूँ कि अचानक से rise कैसे हो रहे हैं cyber offenses. हालत हो रही पैरों की। ठीक है, ज्यादा so पैर परेशान करना, उनकी घड़ी ले जाना। मेरे को डिफिकल्टी हो रही है सुनने में कि किसी और को भी डिफिकल्टी हो रही है? अभी Okay, so moving on with the question is कि अचानक से there has been a rise in the cyber related offenses because since 2019 and 2020 हमारी डिपेंडेंसी साइबर वर्ल्ड पे ज्यादा हो गई है पोस्ट कोविड। हमारे ऑफिसेज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्योरली डिजिटल हो गए थे, हमारी वर्क स्पेसेस डिजिटल हो गई थी, एवरीथिंग अराउंड अस वाज डिजिटल. Since then, our dependency upon the digital world has increased. And कुछ टाइम से I believe 2021 and 23 onwards only we saw an increase in chat gpt, perplexity, gemini sort of softwares, and उनकी basis पे also we have been seeing a lot of AI generated videos and pictures floating around the Instagram, social media, Facebook, right? There's a lot of trends happening around wherein people put up their own pictures over on chat gpt, gemini, perplexity, and get it made into caricatures, some sort of Instagram trends. In that ways what happens is कि हम ऐसे AI सॉफ्टवेयर को अलाउ करते हैं एक्सेस अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से, अपनी पिक्चर से, अपनी वीडियो से, अपनी डेटा से। हमारा जितना भी ड्राफ्टिंग रहता है, इफ इन केस लॉट ऑफ लॉयर्स वुड हैव जॉइन, लॉ स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया होगा, तो क्या है ना, लीगल प्रोफेशन इज ऑल्सो मूविंग अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द AI सॉफ्टवेयर एंड AI मैकेनिज्म्स. What lawyers and law students these days have been doing is they have been writing articles, papers, questionnaires, content, they're drafting all through this AI softwares. उसके वजह से क्या होता है कि हम खुद से अपने जो पर्सनल डेटा है we fetch that to the AI softwares, because of which they have the access and rights to enter our softwares, enter our data domain, and steal our data. तो 2020 और 2019 जब when COVID hit us, post that our dependency upon social media, our dependency upon the digital world, our dependency upon AI softwares, our dependency upon the anything that floats around the internet in the form of waves, इस पे इतना डिपेंडेंसी बढ़ गया है कि साइबर क्राइम्स भी उसके बाद से ज्यादा हो गए. एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि लीगल राइट्स एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म, हाउ डज इट हैपन अराउंड व्हेन वी आर सब्जेक्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम. क्योंकि राइट्स एंड अवेयरनेस इट इज स्टिल इजी फॉर अस टू गेट, बिकॉज अ लिटिल साइबर ऑफेंस हैपेंस अराउंड और हम सीधा गूगल करते हैं व्हाट टू डू इन सर्टन सिचुएशंस, बट नो वन टेल्स यू हाउ टू प्रॉपरली फाइल अ कंप्लेंट, or when you file a complaint, what happens after that, what is going to happen, what all measures you have to take as a victim, what all measures you have to take as a victim, and how to proceed ahead with the complaint mechanism. So ये session इसलिए important है. And then also the legal right that follows around. Accordingly, moving on with the first slide, I hope it's visible. Can someone confirm? The first slide says why this topic matters. Can someone confirm कि यही आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Okay.
So why this topic matters is because there's a lot of reason why this topic matters. Few of them are written on the screen. There's been rise in the cyber harassment. There's been rise in the digital dependency. हम इतना dependent हो गए हैं digital world पे कि हमारा सारा data by default social media पे float कर रहा है. या हमारा data by default AI softwares पे float कर रहा है. हमारा social media misuse हो रहा है. There's a lot of deep fakes around. There's will and online vulnerability happening around. There's fake profiles, morphing, cyber stalking, OTP scams, blackmailing, and sextortion. Now, picking up a few of the concepts, who would have imagined कि अगर आप लोग आज के टाइम पे एक फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, who would have imagined कि उस एक फेसबुक के पोस्ट के वजह से you would have been prosecuted before the court of law और आपको पनिश कर दिया जाता. कैन वी ऑल थिंक इट ऑफ नाउ? एक फेसबुक पे अगर मैं पोस्ट करती हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ तो आपको लगता है कि आज के टाइम पे समवन कैन अरेस्ट मी? दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल. आप लोगों को लगता है अगर मैं कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाती हूँ, कोई कंटेंट करती हूँ, कैन समवन अरेस्ट मी बिकॉज ऑफ इट? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, नो वरीज. तो आज के टाइम पे इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस कि अगर मैं कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करती हूँ, इट इज डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द लॉ टू अरेस्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ इट अनटिल अनलेस कोई प्रॉपर वैलिड रीजन ना हो. तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था. दिस इज बैक इन 2012. देवर टू फीमेल्स. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जब व्हेन वी डिस्कस अबाउट साइबर क्राइम एंड साइबर ऑफेंसेस, साइबर लॉ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग नाउ. 2012 में दो फीमेल्स थी. वन ऑफ द फीमेल्स पोस्टेड अ पोस्ट अपॉन देयर फेसबुक जहां पे उन्होंने एक मिनिस्टर के डेथ के बाद जब गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर करा था एक दिन का, तो उसे क्रिटिसाइज करते हुए एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था. तो जब फेसबुक पे पोस्ट डाला, देयर वाज अनदर फीमेल हु लाइक्ड दैट पोस्ट. तो उस फीमेल को एंड द वन हु लाइक्ड इट, बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड. व्हाई वर दे अरेस्टेड? क्योंकि बैक देन देयर वाज दिस सेक्शन 666A of the IT Act, which is written upon on the screen in the slide itself, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रॉसली ऑफेंसिव एंड मिनिसिंग कैरेक्टर का कोई भी अगर मैं पोस्ट हूं या फिर अनोयंस, इनकन्वीनियंस, इंसल्ट, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनमिनिटी, हेट्रेड और इल विल कॉज होता है, देन द पर्सन हु इज हैविंग इट वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट एंड आई कैन बी अरेस्टेड फॉर इट. So when those two ladies made a post over on Facebook that they were criticizing the government's action, public holiday declare करने के लिए post when a minister died, they were arrested. And only after they were arrested, there was this few people who got together, they filed a complaint before the court of law and they challenged 66A of the IT Act. There is little difficulty for us to have social media misuse on the face of it, but at the end of it, at the behind of it, curtains के पीछे से everyone somehow misuses social media. Now 66A later on when Shreya Singhal versus Union of India case Supreme Court में challenge होता है, 66A challenge होता है, then there was two very important doctrines that came into regulation. One was a doctrine of vagueness, जहां पे बोला था कि कोई भी लॉ, कोई भी सेक्शन जो वेग होता है, it cannot override the constitutional and fundamental rights which are there for the citizens of India. तो हमारा 66A obstructs 19 clause 1 clause A of the Indian Constitution. तो उसके वजह से what happened is 66A को रिमूव कर दिया गया था. Now it is little difficult for us to misuse social media on the face of it, but at the behind of it, everyone somehow uses social media for their undue advantages. OTP स्कैम्स होते हैं, ब्लैकमेलिंग होते हैं. आप लोगों के नोन में ही काफी ऐसी बार हुआ होगा कि कोई आपको एक मैसेज आया होगा एंड इन दैट मैसेज इट वुड हैव बीन रिटन कि प्लीज वोट फॉर मी, आई एम सो एंड सो नोन पर्सन ऑफ योर्स, आप मुझे वोट करेंगे तो आई विल विन दिस इन दिस इलेक्शन. तो आप क्या करते हैं, उस यूआरएल को क्लिक कर देते हैं एंड व्हेन यू क्लिक अपॉन दैट यूआरएल यू गेट रीडायरेक्टेड टू अनदर वेबसाइट एंड इंटायर डेटा ऑफ योर फोन एंड लैपटॉप गेट स्टोलन अवे.
Someone else starts accessing your Instagram, someone else starts accessing your WhatsApp. And it has happened a lot of times with my friends as well, my colleagues as well, my faculties as well. कि I get messages from my faculties कि ma'am, we are appearing for so and so post and position, please vote for us. And when you click upon that URL, you get redirected, and the social media features, they steal your data. So this is a very, very, very common form of social media trap that is out there by the cyber crime criminals. And we need not to be a part of it. हमारे को उससे थोड़ा सा aware रहना पड़ेगा how to safeguard ourselves if in case that happens. There's a lot of blackmailing also happening around. There's a lot of cyber frauds happening around, and कई बार accounts freeze भी हो जाते हैं banks के through when you become a part of the level 1, level 2, level 3, level 4 and subsequent level of cyber offenses. आपके banks भी freeze हो सकते हैं, whether or not आप उस cyber offense का part हो या ना हो. Even if आप नहीं भी हो तो भी अगर आप level में आ जाते हैं, then also your accounts get freezed up, and that also has to be opened up by the court of law. So that also gets a little complex, and it is very crucial and important for us to understand this concept and this topic, because ऐसी criminal offenses से आप अपने आप को safeguard नहीं कर पाएंगे otherwise. Now, when we were discussing about Shreya Singhal versus Union of India case, there was this one threshold that was discussed back then of 66A. This threshold was of discussion, advocacy, and incitement. Now, when we post and when we make a post socially upon social media, be it Instagram, be it Facebook, be it YouTube, there's two types of posts that we make. One post is when we openly criticize something. Another one is we negatively highlight the negatives of a person, and वो criticism positive नहीं रहती है. If in case मैं कोई negative criticism दे रही हूँ and it is not really relevant to that concept, तो वहां पे हमारा 66A का threshold वो cross कर जाते हैं. तो इसी थ्रेशोल्ड के बारे में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिस्कस करा गया था दैट देयर इज सर्टेन थ्रेशोल्ड्स दैट हैज टू बी लुक्ड एट जब हम सोशल मीडिया कंटेंट को देखते हैं. फर्स्ट थ्रेशोल्ड इज ऑफ डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट. डिस्कशन एंड एडवोकेसी के प्रोटेक्टेड होते हैं लॉ से. जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं सोशल मीडिया पे या भी हम कोई एडवोकेसी करते हैं सोशल मीडिया में, वो सोशल मीडिया की जो राइट्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रोटेक्ट करते हैं. बट जहां पे हम इंसाइट कर देते हैं वहां पे वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं लॉ से. एग्जाम्पल है इसका, समझिए कि जैसे वो लेडी थी श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, मैंने आपको जैसे केस बताया था, देवर टू लेडीज हु पोस्टेड अप ऑन ऑनलाइन दैट दे वर ओपनली unhappy with the action that the government took regarding declaration of a public holiday post a minister's death. Now that is an advocacy because they were somehow criticizing and arguing upon the negatives of that act, right? So since they were arguing upon how that's a bad activity to be conducted by the state government, it can be protected by the law. Now had it been a discussion, उन्होंने हो सकता है ओपनली कोई पोल डाला हो, कोई डिस्कशन डालते, तो उसके वजह से अगर 3 से 4 लोग और आगे आके उस चीज का डिस्कशन का पार्ट बनते, then that too would have been protected by the law. However, had it incited the public at large, and उसमें अगर ये लिखा होता क्योंकि since this has happened, we are going to go there at this position और यहाँ पे हम दंगे करेंगे, यहाँ पे राइट्स होंगे ओपनली, इन दैट केस शी वुड हैव बीन अरेस्टेड. बट ऐसा कुछ नहीं था पोस्ट में. शी जस्ट openly criticized the action of the state government, and because of it only she got arrested. So there is this 3 thresholds that has to be looked at whenever you use social media. You have to be very critical about it. You have to be very intellectual about what are you posting upon it. So अगर आप discussion and advocacy के threshold में है, you are protected by the law of India. However, when you incite the public at large, you do not get protection from the court of law. You can get punished and you can be prosecuted for it. Now, what are women's digital rights? Can someone confirm कि यही slide चल रही है on the screen? Yes, ma'am. Okay. Now, when I talk about what are women's digital rights, there are certain rights
which are available for women at large. In general, be it physically, be it for an online world, for a physical world, both of the worlds. However, when we talk about the digital world, the cyber world, for that as well, women have certain rights. ऐसा नहीं है कि अगर आप physical setup में नहीं बैठे हैं and you are a woman, in that case you don't have any right. अगर आप social media पे content creation भी करते हैं, you just normally post, you have a private account, you are there having your trading accounts, banking कर रहे, in that case also there's certain rights which you can avail from the courts of law, and you can also avail from the Indian laws, such as right to privacy. ये केस पुट्टू स्वामी जजमेंट में भी we have discussed that every citizen, regardless of their gender, obviously they have a right to privacy. So if in case it's a private account, be it a public account, even if you post anything up online, you send someone something, you still have right of privacy over that content. इवन इफ इट इज नॉट देयर इन पब्लिक डोमेन, फिर भी आपकी प्राइवेसी आपकी इन्फ्रिंज होती है अगर कोई इसका मिसयूज करता है. अगर वो पब्लिक डोमेन का पार्ट भी है तो भी है वो राइट टू प्राइवेसी. इफ इन केस इट्स योर पिक्चर एंड समवन स्टार्ट्स मिसयूजिंग इट, उसको impersonate करते हैं आपके पिक्चर को, देन ऑल्सो यू हैव राइट टू प्राइवेसी ओवर योर पिक्चर, इवन इफ इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन. Then right to dignity. Obviously, no one can come up online and infringe your right to dignity. ऐसा नहीं है कि if in case that you are posting something on social media and someone comments over it, any sort of vulgar comment, any sort of offensive comment, then you do not have right to dignity over it. So you can report those kind of comments and messages, DMs, threatening messages to the cyber crime government as well. Now, this right against online harassment. ये जब हम ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात करते हैं, दिस कैन बी रिलेटेड टू बोथ योर सोशल मीडिया एज वेल एज योर वर्क प्लेस. तो इस पे हम पॉश लॉ पे स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस इट थॉरली. हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट इट राइट नाउ, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इट इन बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स. जब आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, आप एआई को भी अपना डेटा फेच करें इन दैट वे एज वेल, प्लस your workplace online harassment as well. Both of the ways आपको उस पे right मिलता है. Then is right to data protection. Your whatever data you put up on social media, you have a right to protect that. Now, a few years back, there was this one law that came into regulation, DPDP Act. 2023 में वो बिल था, अब वो एक्ट हो चुका है. In that, now सेंसिटिव डेटा के अलावा भी इन जनरल जो हमारा स्टैंडर्ड डेटा होता है किसी भी पर्सन का, बी इट अ फीमेल और बी इट अ मेल, वो भी प्रोटेक्टेड रहता है बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ. तो इन दैट केस ऑल्सो यू ऑल्सो हैव राइट टू डेटा प्रोटेक्शन. वट एवर डेटा यू पुट अप ऑनलाइन, रैदर पब्लिक डोमेन डेटा, स्टैंडर्ड डेटा भी है तो भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा. अगर वो सेंसिटिव डेटा भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा सिर्फ और स्टैंडर्ड डेटा नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड डेटा भी रहेगा. Then comes your constitutional protections. So Article 14, Article 19, Article 21. You all have your right to right to equality. Then you also have right to expression and free speech. जैसे हमने श्रेया सिंघल का केस डिस्कस करा था कि that they were two females who put up online certain content over on Facebook and they were arrested for it. In that ways also there's certain restrictions. Obviously 19 clause 2 हमारा restrictions लगाते हैं. There's certain 8 to 7 restrictions जिसकी वजह से your right to free and speech, right to free speech आपकी infringe हो जाती है. However, अगर वो certain reasonable restrictions available नहीं है आपके केस सिनेरियो में, तो आपको सेक्शन आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड होती है. Now, what are the certain kinds of common crimes against women? In that, we have your cyber stalking, your online bullying, your morphing and editing of photographs, the revenge porn. A lot of time what happens is there are ex-boyfriends, there are your colleagues, there are your friends. When they do not get their advantages, what they do is they take up your picture. They take up your normal picture, they morph it, they edit it, and they put up on website जहाँ पे वो नहीं डलनी चाहिए थी. In that case also, the law is available at your disposal for you to report those crimes and take action upon those people as well. Then there's revenge porn that happens around. There's sextortion. People ask you for favors on the basis of any photograph, video, edited, be it edited और ओरिजिनल, उनके बेसिस पे वो आपसे फेवर्स मांगते हैं.
Then there's fake accounts happening around. काफी बार ऐसा होता है कि people have this misconception that when you have your public account only then fake accounts would be made. ऐसा नहीं होता. Sometimes your close friends also make fake accounts and fish people around in your name, in your activity. In that case scenario also you can report these kind of crimes. Then there's impersonation happening around. There's financial frauds. कई बार what happens is someone will call you up and say कि आपने Google Pay पे you have paid this much of amount, please make this much of amount back to me क्योंकि वो मेरे से गलती से हो गया था या आपसे गलती से हो गया था. I am going to pay you. You send me the OTP. These type of frauds happen around, and you give them the OTP, you give them the access to your bank accounts, and suddenly everything vanishes from your bank account. But not only that, everything in your phone, in your laptop, in your computer also vanishes because उस एक OTP के कारण they get access to your entire data. Be it your phone, be it your laptop, be it your computer, उसका सारा डेटा एक छोटे से OTP से पूरा ट्रांसफर हो सकता है. एंड ये सिस्टम साइबर अटैकर्स का इतना डेवलप हो चुका है दैट इंडियन गवर्नमेंट हैवंट बीन एबल टू टैकल दी ऑफेंसेस एज ऑफ नाउ उतना रैपिडली जितने रैपिडली में ये ऑफेंसेस होते हैं. वी विल आल्सो डिस्कस दैट थॉरली. देन देयर इज डीपफेक मिसयूज. Now, what are deepfake misuses are? Lot of times AI generated videos and pictures float around internet, and because of it, people get an idea कि जो वो person या video हो रहा है, those are the real videos and pictures happening around. कि वो person का ही video है. That person has only uploaded that. ऐसा नहीं होता. They can be generated through AI as well, artificial intelligence as well. Then there's blackmailing happening around with chats and images. Now, what happens is sometimes when you do not give your OTP also, sometimes your chats get stolen simply. आपके chats get stolen through your URLs. कई बार आपको ऐसे मेल्स आते हैं that mails ask you to open up a URL and somehow you open it up and then suddenly your data gets vanished. उनके वजह से जो चैट्स और इमेजेस होते हैं, योर प्राइवेट इमेजेस, योर पब्लिक इमेजेस ऑल्सो, कई बार हमारी बैंकिंग डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स भी हमारे फोन में होती है. दोज काइंड ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो, समटाइम्स द प्राइवेट इमेजेस ऑल्सो गेट स्टोलन बाय सर्टन साइबर अटैकर्स. एंड व्हाट दे डू इज दे आस्क यू टू गिव मनी. नाउ वन टाइम व्हाट हैपेंड इज, मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करती हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दे रिसीव्ड अ वीडियो कॉल ओवर ऑन व्हाट्सएप और उन्होंने वो पिकअप करा. Now, when they picked up their WhatsApp video call, what happened is there was this lady who was calling him up, and she was not wearing anything. In that way, what happened is जब उन्होंने वीडियो कॉल अटेंड करा तो भले ही आप देख के वीडियो कॉल कट कर देंगे, बट what happens is for that 2 second टाइम पीरियड your picture along with that lady's picture gets एक ही टाइम पे एक स्क्रीन पे. What she did was she took a screenshot of it and she sent that picture back to my friend, and she said कि now I'm going to send the same picture to your wife, and since I have data of your phone पहले से ही, because already cyber offenders ने उनके फोन में already breach कर रखा था data, they had the phone number of his wife as well. Now I'm going to send this picture to your wife and I'm going to tell her that you are having extramarital affairs until unless you give me certain amount of money. ऐसा बहुत बार होता है कि अनोनिमस नंबर से यू विल गेट अ कॉल. वंस यू पिक इट अप, सडनली इट विल बी स्विच टू अ वीडियो कॉल, और अब वो वीडियो कॉल पे स्विच होते यू विल सी लेडीज अपॉन इट एंड दे विल टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट एंड स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू. सो दैट हैपेंस अराउंड अ लॉट ऑफ टाइम. दिस गेट्स रिपोर्टेड टू द क्रिमिनल, रिपोर्टेड अबाउट द क्रिमिनल्स कि ऐसा होता है. Then there's certain important laws applicable in certain scenarios. ये हमने डिस्कस करा कि कैसे कैसे क्राइम्स आसपास हो रहे हैं when we talk about the cyber world and the digital world around us. But then what all laws are there for our disposal? Now we already discussed about the IT Act, the right to privacy, right to dignity, the constitutional 3 articles that we discussed, 19, 14 and 21. But there are certain specific laws which dwell upon this issue of digital world. ये कौन से लॉज हैं? पहला है हमारा IT Act. तो IT Act has been the one which came back in 2000, and there are certain laws and certain sections in IT Act which specifically deal with the kind of topic we are handling today, the legal rights and women protection and the women complaint mechanism that are available for our disposal. In that ways, IT Act के कुछ sections है which specifically talks about it. जैसे section 66C है. Section 66C says that whosoever
tries to steal your identity over on social media or on this digital world will be prosecuted for 3 years punishment and will also be imposed with a fine. And then there's 66D about it. 66D says कि जो भी आपको चीट करता है बस बाय इम्पर्सनेशन, हो सकता है मैं आपको इम्पर्सनेट करके आपका ही कोई क्लोज फ्रेंड बन जाऊं या फिर कोई पर्सन बन जाऊं जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, एंड आई आस्क यू टू गिव मी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड आई चीट यू. In that case also I will be prosecuted for a period of 3 years and I will also be subjected to a fine. Then there's 67. 67 says that whosoever on social media spreads around obscene conduct, obscene content, be it related to me or be it related to any other person, will be subjected to 5 years of imprisonment with fine. So this increases and the punishment increases 375 and then 67A. 67A says that sexually explicit material अगर कोई मेरा या कोई भी कंटेंट पे specifically float around होता है, in that case the person can be on subsequent offenses be prosecuted for 7 years plus fine. तो कुछ सेक्शंस है. देन वी हैड 66A एज वेल, बट 66A श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हट गया था. देन 66C है, 66D है, देन वी हैव 66E आल्सो, बट वो स्पेसिफिकली डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, नॉट पर्टेनिंग टू दी विमेन राइट्स एंड डिजिटल वर्ल्ड. तो हम उसके बारे में बात करें तो 66C 66D हैंडी हमारे लिए काम आ सकते हैं. देन देयर 67 67A. तो ये कुछ सेक्शंस है जो भी ऑल ऑफ द पर्सन हु हैव जॉइंड दिस सेशन टुडे, it is very important for you all to understand these sections and get a hold of it. It is because what happens is 99.9% times not many people know about their laws. They're not aware about what all remedies they can opt for in this kind of situation. जब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई आपकी आइडेंटिटी स्टील कर लेता है, कोई आपका ऑब्सीन मटेरियल कहीं और फ्लोट कर देता है. Sometimes what happens is lot of time females reported to the cyber officials that उनकी पिक्चर उनकी किसी कलीग को या उनके किसी फ्रेंड को किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे मिली है. शी डज नॉट इवन नो इट फॉर हरसेल्फ एंड देन शी गोज ब्लैंक. क्योंकि भले ही ये क्राइम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, भले ही ये क्राइम डिजिटल वर्ल्ड के लिए हो रहे हैं, बट देन अगेन उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसका इम्प्लीकेशन है वो ऑनलाइन नहीं होता है. फिजिकल भी हमारे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ट्रॉमेटिक होता है. पीपल लॉट ऑफ टाइम फेस के उनको फिजिकल वर्ल्ड में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं व्हेन डिजिटली समथिंग लाइक दिस हैपेंस अराउंड. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ. क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड में कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं तो हमारे को उसको उतना ग्रेव नहीं कंसीडर करना जस्ट बिकॉज वो रेप की कैटेगरी में नहीं आते या मर्डर की कैटेगरी में नहीं आते. ऐसा नहीं होता. एवरी ऑफेंस दैट हैपेंस अराउंड बी डिजिटल वर्ल्ड बी इन द फिजिकल वर्ल्ड हैज इक्वल implications related to a person's psyche, person's mental person can also be mentally harassed because of it. Then there's this BNS and IPC sections, voyeurism, stalking, criminal intimidation. Then there's defamation and extortion. Giving you a little historical background about it. 2012 में एक ऑफेंस हुआ था which shook the very foundation of Indian government, Indian law, Indian society. That was the Nirbhaya rape case. जब 2012 में वो रेप केस हुआ था, everyone got to know how fragile the Indian laws were. इतनी जल्दी से वो टूट गए थे बिकॉज हमारा लॉज उस टाइम पे ये सब चीजों का कंसीडर ही नहीं करता था. स्टॉकिंग को कंसीडर नहीं करता था, वॉयरिज्म को कंसीडर नहीं करता था. अब क्यों नहीं कंसीडर करता था वॉज बिकॉज सोसाइटी पहले इतनी आई वुड से इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि वो मिनी अटैक्स को कंसीडर ना कर सके. मिनी अटैक्स का मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इस, हम रेप, मर्डर और सर्टन टाइप ऑफ ऑफेंसेस को इतनी ग्रेविटी से देखते हैं कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि वो जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं उन तक पहुंचते पहुंचते कई बार किसी भी फीमेल किसी भी मेल के साथ बहुत सारे छोटे छोटे मिनी ऑफेंसेस भी होते आ रहे होते हैं. मान के चलो समवन इज गेटिंग रेप्ड वन डे, तो वो फीमेल आए, शी केम एंड शी रिपोर्टेड टू द पुलिस ऑफिसर्स दैट आई गॉट रेप्ड. इन दैट ऑफेंस व्हाट हैपेंस इज कि रेप का उन्होंने ऑफिशियली आके रिपोर्ट तो कर दिया, बट रेप से पहले कई मिनी ऑफेंसेस हुए होंगे उनके साथ जिन्होंने जिसको फॉलो किया होगा. जैसे कि हो सकता है जो रेपिस्ट थे उन्होंने उनको स्टॉक करा हो, उनको 6 दिन उनका रास्ता रोका हो, उनका पीछा करा हो,
उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करा हो, उनकी नेम निकाला हो, उनकी कलीग्स को मैसेजेस करे हो, उनकी वर्क प्लेस की लोकेशन निकाली हो, उनकी घर की लोकेशन निकाली हो, उनकी कोई पिक्चर उनको मिली हो, उसको मैनिपुलेट करा, उसको एडिट करा, उसको फॉर्ज करा, ऐसे करके दे स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हर, एंड वंस दे फाउंड हर एट अ वल्नरेबल पोजीशन अलोन, दे रेप्ड हर। तो कुछ मिनी ऑफेंसेस भी थे जिसपे हमारी पहली नजर कभी गई ही नहीं थी, एंड सब्सिक्वेंटली पोस्ट 2012 case law of Nirbhaya rape case, only then they realized that these kind of mini offenses also need our equal attention. एंड वो मिनी ऑफेंसेस क्या थे? वॉयरिज्म थे, स्टॉकिंग थे, एंड दिस लॉट ऑफ अदर ऑफेंसेस एज वेल, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट था, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में हम पहले कंसीडर नहीं करते थे, विच इज 354A, 354A, B, C, D, all of these came into regulation only post 2012 amendment of criminal law. And that only came after Nirbhaya rape case, that we realized that there are certain loopholes in the criminal law and we need to work upon it. Similarly, what is voyeurism? Voyeurism is an offense wherein you float around pictures related to a person's identity of an obscene character upon on social media, and you can be prosecuted for it. आप उसके लिए प्रोसिक्यूट हो सकते हैं अगर आप किसी के किसी भी कंटेंट को सोशल मीडिया पे फ्लोट अराउंड करते हैं. इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट फन. पीपल गेट मेंटली हैरेस्ड बिकॉज ऑफ इट. देन दे स्टॉकिंग. स्टॉकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वेन एवर आई स्टेप आउट माई हाउस ओनली देन पीपल कैन स्टॉक मी. पीपल कैन बी स्टॉकिंग मी ओवर ऑन सोशल मीडिया एज वेल. दैट कैन हैपन वेरी इजीली. हो सकता है कोई मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को टैग कर रहा हो, पीपल मे बी लुकिंग एट माई एक्टिविटी एंड दे वुड बी सेइंग कि मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कौन सी कंडक्ट करती हूँ एक्टिविटी, वेयर डू आई वर्क. जैसे लिंक्डइन पे व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स पीपल पोस्ट वेयर देयर वर्क, देयर ब्रांच ऑफिसेज, देयर हेड ऑफिसेज, एंड वन पर्सन हु has that habit of stalking can come to your workplace as well. Directly आपके workplace पे आके आपको threaten कर सकते हैं. They can get to know where they can access your vulnerability. Once you exit your office, they can know कि यहाँ पे वो लेडी अकेली हो सकती है. So social media is a very powerful instrument अगर हम उन उन criminal के उसके perspective से देखेंगे, because बहुत easily उनके पास वो data available हो जाता है which can make us vulnerable. Sometimes what happens is, a lot of times when people have to threaten you, what they do is they take out your family pictures. They start threatening you through your family pictures as well. Ki we know your so and so person studies over there, we know so and so person works over there, and we can threaten them, we can kill them, we can cause harm to them. So zaruri nahi hai ki stalking happens only in a physical setup. Stalking can also happen in an online setup, and we have to understand the gravity of it as well. Then there's voyeurism, there's criminal intimidation. People can be criminally intimidating you for so taking out certain benefits out of you, certain favors out of you. Then there's defamation. They can float around content which can defame your character, your image at a mass level. आपकी इमेज डिस्टॉर्ट हो सकती है. That can also be implicated. आपका 499 है, आपका 500 है. Now it BNS is protecting it. ये सारे certain laws हैं जो पहले IPC में और BNS दोनों में कवर होते हैं. And there's extortion also. कोई भी कभी ऐसा होता है कि financial favors निकालने के लिए people extort and blackmail you ताकि आपसे कोई financial favors मिल जाए. नाउ वॉयरिज्म जो है आईपीसी और बीएनएस में कहाँ डिफरेंशिएट हो जाती है इज दैट कि वॉयरिज्म सब जो डेफिनेशन था इन आईपीसी स्टेटेड दैट इट इज एनी मैन हु फ्लोट्स अराउंड सर्टेन कंटेंट, ऐसा था डेफिनेशन. बट देन बीएनएस सेज दैट हूएवर. Now voyeurism is a gender neutral law that the BNS has taken up, and now anyone who does that. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल आपका कोई कंटेंट उठा के she is floating it around upon social media, then you do not have any right over it. Yes, you do have right over it as well, because now BNS has made voyeurism a gender neutral section. So even a female can be prosecuted for it, not just a male. A female can be too. Now just one second. Right. Now coming back to POSH Act, there's one more act which is there for your disposal, that is your POSH Act. This is something that I have my specialization in, so I will be speaking dearly about this subject because I hold it very close to my heart.
Now, POSH Act is a law which got implemented back in 2013, wherein what happened is कि अगर मैं historically आपको एक background समझाऊं कि some time back there was this one lady named as Vishakha, के नेम से हम उनकी एनजीओ को कंसीडर करेंगे, but there was this one lady राजस्थान में जिनका काम था कि अपनी ही विलेज में अवेयरनेस स्प्रेड करना और सोशल जो क्राइम्स हो रहे थे उनको रोकना. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड इज वन डे शी गॉट अ कंप्लेंट, एंड इन दैट कंप्लेंट समवन रिपोर्टेड कि उनके पास में एक चाइल्ड मैरिज हो रहा है. तो when she got to know about it कि वो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, what she did was she went and she tried to stop the child marriage. Now she came from a sector, she came from a caste जो कि हमारे सोशल डाइकोटमी में थोड़ा कंसीडर कम करा जाता था उस टाइम में. तो जिनकी वो शादी रोक रही थी वो थोड़े ऑफेंड हो गए कि अरे हम तो थोड़ी हायर कास्ट से, हाउ कैन यू रोक स्टॉप दैट. Now they got offended because of their casteism also and the social dichotomy which was there. And what they did was कि शादी complaint lodge करने के बाद शादी से related what happened is lot of goons from that family came in and they openly raped her in a field. अपने हस्बैंड के उनके हस्बैंड के आगे ही शी वॉज ओपनली रेप्ड. एंड वंस शी वॉज रेप्ड शी ट्राइड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस ऑफिशियल्स, और किसी ने उनके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया था कंप्लेंट पे, बिकॉज द गून्स वर अ वेरी पावरफुल, बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पावरफुल फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज. कुछ टाइम तक शी स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हर केस, एंड देन सब्सिक्वेंटली एक एनजीओ था नेम्ड एज विशाखा विच केम इन एंड ट्राई टू हेल्प हर आउट. उन्होंने इसको चैलेंज करा और ये बोला कि वो जो लेडी थी वो अपने वर्क प्लेस में एक काम कर रही थी और उनका वर्क प्लेस वॉज द इंटायर विलेज, एंड उनके वर्क प्लेस पे उनका जो काम था वो ऑब्स्ट्रक्ट करा गया था. एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर अस टू हैव अ लॉ विच स्पेसिफिकली गारंटीज कि अगर कोई फीमेल अपने वर्क प्लेस पे कोई काम कर रही है देन नथिंग ऑब्स्ट्रक्ट्स और नथिंग हिंडर्स हर परफॉर्मेंस और नथिंग हिंडर्स her growth. Then in that after that विशाखा गाइडलाइंस फॉर्मुलेट हुआ. विशाखा गाइडलाइंस फॉर्मुलेट होने के बाद सम टाइम आफ्टर दैट देयर केम अ रेगुलेशन नोन एज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. पोस्ट दैट उनमें बोला गया कि आपको आईसी कमिटी बनानी पड़ेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ेगी, जिसको पहले हम आईसीसी कमिटी कहते थे और अब बोलते हैं आईसी कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ेगी. और उस इंटरनल कमिटी को हर उस कंपनी में बनाना पड़ेगा जहां पे 10 से ऊपर कोई भी एम्प्लॉयर आएंगे. एंड if in case any female gets subjected to any sort of sexual harassment in that particular setup कंपनी, भले वो विजिटिंग फैकल्टी हो, भले वो विजिटिंग पर्सन हो, विजिटिंग एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, देन शी कैन कंप्लेन एंड फाइल कंप्लेन टू द आईसी कमिटी. और अगर आईसी कमिटी 10 से नीचे लोगों पे नहीं बन पा रही है देन शी कैन फाइल अ कंप्लेन टू एलसी. तो ऐसे सिनारियो में उन कमिटी का फॉर्मुलेशन वाज अ पार्ट ऑफ द मैंडेट विच वाज देयर एज अ पार्ट ऑफ द पॉश एक्ट. नाउ पॉश एक्ट 2020 और 2020 के बाद 21 के बाद दे रियलाइज दैट देयर वाज आल्सो अ नीड फॉर देम टू हाईलाइट कि कैसे डिजिटल वर्क प्लेस आर आल्सो बीइंग अफेक्टेड, क्योंकि लोगों का जो वर्क प्लेस है अब वो डिजिटल होता जा रहा था. कोविड के बाद वी इंटायरली स्विच टू अ डिजिटल सेटअप. एंड जब डिजिटल सेटअप में वी ऑल स्विच्ड तो लोगों को चैलेंजेस फेस हो रहे थे, क्योंकि क्या होता था कि हम सुबह से लेके एवरी वन यूज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एंड आफ्टर द ऑफिस आवर्स द मैनेजर्स द बॉसेस यूज टू कॉल अप ऑन वीडियो कॉल्स, कॉल करते थे, फोन कॉल्स करते थे, एंड देन दे यूज टू आस्क देम टू डू वर्क वीडियो कॉल्स पे अवेलेबल रह के, जैसे भी रह के. एंड समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि ये चीजें उनके प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट को क्रॉस कर जाती थी, उसको ब्रीच कर जाती थी. एंड वंस इट यूज टू ब्रीच दैट प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट की बाउंड्रीज देन इट यूज टू एंटर द ऑफेंस एज अ पॉश कंप्लेंट. बट देन द ऑफिस वाज डिजिटल. आप अपने घर में बैठ के काम कर रहे, समवन इज एल्स वर्किंग इन देयर ओन प्लेस, देन हाउ कम दिस इज अ डिजिटल वर्क प्लेस? This was a digital workplace because the mode of you working was a digital setup. Therefore, post-COVID, we also found that there was a
need for us to understand that the workplace can be both digital as well as physical. So now when we talk about the digital laws which are available for us and the important laws that can be applicable for us when we are being digitally harassed, then POSH Act also comes into loop, because वहां पे डिजिटल सेटअप की भी हम कंसिडरेशन में रख रहे हैं क्लॉज को. Then this one very important act that has to be discussed, which is the Digital Protection Personal Data Protection Act. This came in back in 2023. Now this is a very important act क्योंकि इसका 43A of the IT Act got overridden by this act, जिसमें certain penalties used to be imposed upon companies ऑन द ग्राउंड कि अब आप अगर कोई डेटा इन्फ्रिंज होता है या कोई भी नेग्लिजेंस कॉज होता है किसी भी कंपनी का थ्रू डेटा के पर्सन के, देन यू विल हैव टू गिव कॉम्पनसेशन टू दैट पर्सन और द गवर्नमेंट, राइट. नाउ दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इट डिड वाज, इसने ये नहीं बोला कि आपसे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करोगे, विच अर्लियर वाज अ क्लॉज इन डिजिटल दिस आईटी एक्ट. ये सिर्फ सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता था, अब ये स्टैंडर्ड डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है. व्हाट दे से इज कि कोई भी स्टैंडर्ड डेटा कोई भी पर्सन आके कभी भी किसी को शेयर करता है, दैट आल्सो नीड्स आर इंपॉर्टेंस, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सो नाउ इवन अ स्टैंडर्ड डेटा इज बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट. कई बार व्हाट हैपेंस इज, आपने नोटिस करा होगा, कोई भी हम ऐप या सॉफ्टवेयर अपने फोन में या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो एक डिस्क्लेमर आता है दैट वी अलाउ करके कि आपका ये क्लॉजेज है, एंड देन यू गो एंड यू स्क्रोल इट डाउन और नीचे आता है आई गिव कंसेंट टू ऑल ऑफ द कंडीशंस. जब आप अपना कंसेंट दे देते हो, कई बार वो कंसेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है कि मैं 6 महीने के लिए टाइम पीरियड देती हूँ, या फिर ये मैंने एंड्रॉइड में नहीं, मैंने ये iOS में देखा है, और जो iOS यूजर्स होंगे दे वुड हैव आल्सो नोटिस्ड इट कि समटाइम्स व्हेन यू ओपन अप योर इंस्टाग्राम, योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, लिंक्डइन, पिक्सार्ट, सो sometimes those platform ask you specifically कि लिमिटेड एक्सेस देना है अपनी फोटोग्राफी, अपने पिक्चर्स का, फोटोज का, या फुल एक्सेस देना है, या कोई एक्सेस देना ही नहीं है. ये एंड्रॉइड में नहीं होता क्योंकि इंटायरली आपको सारा एक्सेस देना पड़ता है बाय डिफॉल्ट. तो जो ऐसे कंसेंट्स होते हैं, जब इस कंसेंट का अगर कोई टाइम पीरियड फॉलो कर रहा होता है, देन थ्रू दिस एक्ट व्हाट हैपेंस इज once that time period vanishes, once that time period lapses, then you will have to automatically delete the data that you had taken it initially through that consent form. तो अगर मैंने ये बोला कि 6 महीने तक यू विल हैव टू गिव मी एक्सेस टू योर बैंक डिटेल्स, एंड मेरे को वो 6 महीने तक एक्सेस मिल गया, एंड दैट 6 months lapsed, then after that 6 month period I will have to automatically delete your data if in case I do not require it anymore, and if in case I do require it after that, then I will also have to get you to sign another consent form for another 6 months और subsequently उस पीरियड के लिए. तो जब तक मेरे टाइम पीरियड रहेगा तब तक मैं यूज कर सकती हूँ, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया मेरे को ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट करना पड़ेगा इस एक्ट के थ्रू. Then second thing is, जो भी consent form होता है, that has to be in a language that you understand. It cannot only be just in English language. और जब राजस्थान की, अब बिहार की, या फिर बंगाल की किसी विलेज में, तमिलनाडु के किसी विलेज में जाके आप एक्सपेक्ट करेंगे that people need to understand that consent form. No, you have to show it in a language which is understandable by the people of that particular region, and that consent form has to be in an easy language as well. इस पे क्या होता है कि पेनल्टी कैन लास्ट अप टू 250 crores एज वेल. छोटा सा पेनल्टी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा पेनल्टी का अमाउंट है. सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पेनल्टी अमाउंट, कंपनीज आर वेरी केयरफुल कि वो कौन सा डेटा आपसे ले रहे हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इसमें डीपीडीपी एक्ट में डिस्कशन करते हैं, देन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन क्लॉज इज कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रिजर्व हो रहे हैं, रैदर इट फॉर लाइक 6 महीने के लिए हो रहे हैं, 8 महीने के लिए हो रहे हैं, कितनी भी पीरियड के लिए हो रहे हैं, मगर डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे प्रिजर्व हो रहे हैं. तो डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से क्या होता है कि दैट पेरेंट्स आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कीप अ टैब अबाउट व्हाट देयर किड डू अपॉन ऑन सोशल मीडिया. सो समहाउ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन भी इससे कम हो रहा है, बिकॉज आपका डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऑफ अ चाइल्ड थ्रू दिस एक्ट. आप किसी चाइल्ड का डेटा नहीं ले सकते. यू कैन नॉट, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे अगर आप बिलो 18 दिखा रहे हो तो सोशल मीडिया अकाउंट भी आपका बनेगा नहीं. एंड इवन इफ यू गेट इट मेड समहाउ, देन ऑल्सो the company cannot access your data, and then obviously your digital footprint is there on social media. So there's less of child exploitation if the parents are in loop of what happens around with their child's life upon on digital world.
So this is something that DPDP Act has amended and has brought in. And DPDP Act is very important when we talk about the digital world out there. Now, how can you preserve the evidences, and what should a victim do once a cyber crime has been conducted against them? In that case, screenshots, URLs, email headers, chat backups, transaction IDs, call recordings, device details, username profiles, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये आपको प्रिजर्व करना होता है. कई बार क्या होता है, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज कि क्योंकि उनके पास सिर्फ स्क्रीनशॉट्स है, दैट इट इज इनकम्पासिंग ऑफ एवरीथिंग. पीपल एक्सपेक्ट कि देखो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, देन पीपल कैन टेक कॉग्निजेंस ओवर इट. ऐसा नहीं होता है. स्क्रीनशॉट्स आर नॉट जस्ट द ओनली थिंग दैट हैपन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू व्हेन वी आर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द फॉरम्स. हमारे पास यूआरएल्स होने चाहिए, ईमेल हेडर्स होने चाहिए, चैट बैकअप्स हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडीज हो सकती है. बट ऑब्वियसली जहां पे सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही अवेलेबल है, वहां पे स्क्रीनशॉट्स हैंडी रहेंगे. मगर अगर आपको कोई बैंक फ्रॉड हो रहा है, कोई बैंकिंग कुछ भी इश्यूज हो रहा है, किसी ने आपकी पोर्नोग्राफिक कोई वेबसाइट पे कुछ डाल दिया है, तो अगर आपके पास ये यूआरएल्स, ट्रांजैक्शन आईडीज भी हैंडी आ सकती है, तो उसको भी हैंडी रखिए. सिर्फ स्क्रीनशॉट्स पे रिलाई मत करिए, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स कई कई बार वो डेटा नहीं हैंडल कर पाती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्राइम्स के लिए. जैसे कि कोई यूआरएल होता है, व्हेन यू वांट टू गेट क्राइम रिजॉल्व, कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे आपका कुछ कंटेंट डल गया, स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है, फेयर एनफ. नाउ if in case I change the domain of it, if in case I change the URL of it, then what happens? तो वो स्क्रीनशॉट में आपने पिक्चर ले लिया, वेरी गुड. व्हाट इफ आई गेट ब्लॉक फ्रॉम दैट वेबसाइट? वो वेबसाइट कुछ करेंटली की टाइम के लिए गायब हो जाती है. तो डीएनएस आपका हमेशा इंटरनेट पे रहता है. कोई भी वेबसाइट बनती है, उसका डेटा हमेशा इंटरनेट पे रहता है. इवन इफ यू डिलीट इट, until unless द गवर्नमेंट डिलीट्स इट, वो डेटा हमेशा वेबसाइट के पोर्टल पे रहता है. वो कहीं ना कहीं वो फ्लोट अराउंड कर रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट योर वेबसाइट कैन बी ट्रैक्ड. And that through that URL only it happens. When you have just the screenshot, it does not become that handy. Obviously, कहीं ना कहीं अगर हम कोशिश करें तो स्क्रीनशॉट की वजह से भी हम चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर यू टू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स at your disposal as well. Now this is a real life example as to what happened with me. तो कुछ टाइम पहले मेरे को एक मेल आती है. ना मैंने पिछली वेबसाइट पे डिस्कस करा था ईमेल हेडर्स के बारे में. आई वाज डिस्कसिंग कि यूजर नेम, प्रोफाइल लिंक्स, ये सब रखो, स्क्रीनशॉट्स रखो, राइट. उसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कुछ टाइम पहले मेरे को एक मेल आती है, और ये एक अकेली मेल नहीं थी, मेरे को दो मेल आती है. और ये तो फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, समवन हुज ट्राइंग टू फिश मी, दे रियलाइज कि आई एम एन एडवोकेट एंड सूर्य प्रकाश खत्री सर वाज द चेयरमैन बैक देन, तो हो सकता है उनके नेम से उन्होंने फिश करके मुझे भेज दिया हो. बट नाउ जो मुझे इसके बाद सेकंड मेल आई थी वॉज ऑफ माई एक्स ऑफ बॉस. नाउ आई व्हाट हैपेंड इज वन डे आई रिसीव टू मेल्स. एक ही दिन में मुझे दो मेल रिसीव हुआ. और जो ये मेल आईडी आप देख रहे हैं, PRTE2863@optimum.net, इसमें जो नंबर है 2863 सिर्फ इसमें चेंज था, और इसके अलावा एवरीथिंग वाज सेम, एब्सोल्युटली सेम. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की फर्स्ट मुझे मेल आई है जिसमें सूर्य प्रकाश खत्री सर, हु वाज द चेयरमैन बैक देन, हैड मेल्ड मी, एंड उन्होंने लिखा मुझे, हाय दुर्गा, आर यू रीचेबल, प्लीज काइंडली रिकन्फर्म, वार्म रिगार्ड्स. और आई वाज, मैं इसका ट्रैप अप खुद पार्ट बनने वाली थी, बिकॉज आई रिप्लाई टू इट, बिकॉज आई थॉट, क्योंकि कुछ वेरिफिकेशन चल रही थी, तो आई थॉट कि हो सकता है कि आई वुड हैव बीन गेटिंग जेन्युइन मेल्स फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, एंड आई रिप्लाइड कि येस सर, आई एम अवेलेबल. आई डिड दैट, मैंने वो चीज करी. एंड वंस आई डिड दैट, मुझे कब पता चला कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने की कोशिश हो रही है, बिकॉज इसकी नेक्स्ट मेल जो मुझे रिसीव हुई थी वॉज दैट सूर्य प्रकाश खत्री सर के नेम से मुझे थर्ड मेल आती है, ये लिखते हैं कि प्लीज मुझे 20,000 रुपीज कैश दे दीजिए, बिकॉज आई एम कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन एंड फॉर दैट आई नीड फंड्स. That is when I realized, oh my God, it's a cyber offense. ये तो cyber crime हो रहा है मेरे साथ. And I took a screenshot of it and I reported it to cybercrime.gov.in. अब ये तक I could have understood, but then the second mail that I got was same mail ID से, बस numbers में changes था, और मुझे आती है मेल मेरे एक्स बॉस से. उसमें ये लिखा हुआ है कि हाय दुर्गा, हैव यू डन दिस वर्क, एंड द सेम मेल आईडी इज देयर. और उन्होंने जो मेरे को काम दिया था उस दिन पे, उसका वो मेरे से टैली ले रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग मी व्हाट इज द स्टेटस अपॉन इट. एंड आई रियलाइज्ड
कि this is not my sir's handle, then how come I am receiving a mail from it? Now, why it concerns is because कि somehow those cyber offenders had had taken up my personal information. उनको one way or another से कहीं ना कहीं से ये चीज पता चली that I have been working under this office. तो कोई चीज आपके पब्लिक डोमेन में जब जाती है तो आपको नहीं पता होता हाउ इट इज बीइंग मिसयूज्ड. एंड आई हैड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टिंग, मतलब काफी मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो उस टाइम पे प्रोटेक्ट कर सकते थे मेरे लैपटॉप को एंटीवायरस से. बट समहाउ दे स्टिल गॉट एक्सेस टू मेरे ऑफिस की डिटेल्स. दे गॉट एक्सेस टू व्हाट माय एक्स बॉस's नेम वाज, एंड दे गॉट एक्सेस टू व्हाट वर्क आई वाज वर्किंग अपॉन दैट डे, एंड दे सेंट मी अ मेल. एंड अगर मैंने उसका रिप्लाई भी करा होता तो देन द सेकंड मैसेज वुड हैव बीन टू गिव देम 220,000 रुपीज, क्योंकि उनको कोई वर्क कराना है. एंड दैट इज ओनली व्हेन आई रियलाइज कि मेरे साथ साइबर ऑफेंस हो रहा है. एंड आई रिपोर्टेड टू द साइबर गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उन पे आई रिपोर्टेड इट. एंड सब्सिक्वेंटली ये सॉल्व भी और रिजॉल्व भी हुआ इशू, और ये पकड़े भी गए लोग. और उसमें ये भी हुआ कि अगर आई वुड हैव रिप्लाइड और मैंने पैसा दिया होता, आई वुड हैव बीन अ ट्रैप, आई वुड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर ऑफेंस. So this happened real life with me. So I wanted to share it with you all. तो मैंने screenshot attach करा है. This is the kind of fishy mails that you get over social media, over on your mail. और कई बार ऐसा होता है कि आपके spam में आया होता है कि congratulations आप 2 मिलियन जीत चुके हैं, congratulations आप 3 मिलियन जीत चुके हैं, आप चैरिटी में आपको इतना पैसा डोनेट हो चुका है, congratulations you have won a lottery. And when you click upon it, everything gets stolen from your computer and laptop. Every personal information, every private image of yours suddenly starts floating around on a social media because you have given them the access to access your content, your private information, your personal information. Now, what are the certain steps that you have to take care of after you have been you have been harassed on a cyber platform? You do not have to panic, because regardless of कितना ही इनका सॉफ्टवेयर improve कर गए हो, somehow or in one way or another, Indian government has been working upon handling those kind of complaints, and काफी portals और काफी remedies available है हमारे disposal के लिए, जिसकी वजह से ये सब चीजें resolve हो सकती है. Then we have to preserve the evidences. कोई भी स्क्रीनशॉट यूआरएल जो हमने डिस्कस करा था कुछ स्लाइड्स पहले, यूआरएल्स कोई भी आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट हेडर्स है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन बी प्रिजर्व बाय यू. प्लीज स्टार्ट प्रिजर्विंग इट बिफोर हैंड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड. यूआरएल मिलता है, कोई स्क्रीनशॉट मिलता है, प्रिजर्व इट राइट अवे. Then block or report accounts. If you start receiving comments, you start receiving threatening DMs, messages from any sort of IDs or numbers, ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम. समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि आपको व्हाट्सएप पे कोई इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. हाय, डू यू रिमेंबर मी, आई मेट यू सम टाइम बैक. एंड देन सडनली व्हेन यू रिप्लाई टू देम, सब्सिक्वेंटली आपका फोन हैक हो जाता है. So this happens a lot. So once you get a fishy message or fishy mail or fishy DM, report and block it right away. Then lot of times what happens is कि मेरा एक ही सोशल मीडिया पे जो पासवर्ड है वो ही हर जगह सेम सोशल मीडिया पे पासवर्ड चल रहा है. डोंट डू दैट, बिकॉज आपके हर सोशल मीडिया पे अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए. नाउ इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट काफी लोगों के लिए ये चीज हैंडल करना, इज बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग पासवर्ड्स रखेंगे तो इट गेट्स डिफिकल्ट. बट उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक मेल आईडी रखिए आप, और उन पासवर्ड्स को उनके साथ सिंक करते रहिए. तो जब आप उस मेल आईडी को लॉग इन करेंगे और उस मेल आईडी पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए कि अगर उस मेल आईडी को भी कोई एक्सेस करता है, देन यू गेट एन आइडिया एज टू योर आईडी इज बीइंग हैक्ड, दैट ईमेल इज बीइंग हैक्ड. और उस मेल आईडी से कनेक्ट ऑल ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके पासवर्ड सिंक कर दीजिए. सो व्हेनेवर यू आर ओपनिंग अप डिफरेंट सोशल मीडिया आईडीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद डिफरेंट पासवर्ड, इट डज नॉट गेट वेरी मोनोटोनस फॉर यू कि अलग अलग पासवर्ड को कैसे मेमोराइज करूं. और एक पासवर्ड को अलग अलग प्लेटफॉर्म से मत रखिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू टर्न ऑन योर 2 फैक्टर अथॉरिटी सेटिंग्स, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी लोकेशन से कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लॉग इन होती है, देन यू गेट अ मैसेज और कॉल जब भी वो एक्सेस होता है डेटा. Then is you have to inform banks. अगर कोई fraud होता है, then you have to inform banks right away and you have to tell कि हमारे साथ fraud हुआ है, please take cognizance upon it. और अगर banks
उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं 30 days के टाइम पीरियड में, देन यू ऑल्सो हैव अ रेमेडी कि आप आरबीआई के ओम्बड्समैन, उन बैंक के लिए उनको आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आरबीआई के ओम्बड्समैन होते हैं बैंक्स के ऊपर, एंड देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू दैट ओम्बड्समैन एज वेल कि बैंक ने इस पे कॉग्निजेंस नहीं लिया है, मैंने कंप्लेंट जो लॉन्च करी थी उस पर। देन यू कैन फाइल कंप्लेंट इमीडिएटली। जिन पे कंप्लेंट फाइल करनी है और कैसे फाइल करनी है वो हम डिस्कस करेंगे थरेली। दैट इज ऑल्सो अनदर स्लाइड, एंड दिस इज समथिंग वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड थरेली। एंड देन इन्फॉर्म ट्रस्टेड पीपल। मैं क्यों बोलती हूँ इन्फॉर्म ट्रस्टेड पीपल इज बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन योर आईडी और योर व्हाट्सएप नंबर, योर सोशल मीडिया अकाउंट्स गेट fraudulently captured by someone else, तो वो सबसे पहले आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे करके कॉन्टैक्ट्स में उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको कांटेक्ट करके बोलते हैं ब्रदर प्लीज गिव मी some sort of amount, I need to utilize it for my favor, sister please give me this amount, my friends के नेम पे जो नंबर होते हैं, कभी कभी कुछ इमोजीज लगा दी होती है हमने कॉन्टैक्ट्स में, उन लोगों को सबसे पहले अटैक करा जाता है साइबर ऑफेंडर्स के थ्रू, बिकॉज दे नो कि वो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स है एंड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स आर गोइंग टू ट्रस्ट अपॉन दिस नेम एंड दिस कॉन्टैक्ट नंबर। उनको विश्वास है कि सो एंड सो पर्सन इज इफ इन केस इज अप्रोचिंग, तो कुछ किसी नीड से ही कर रहे होंगे। तो वो आपकी मदर को अगर आपको पता चलेगा यू रिक्वायर 20,000 रुपीज, शी माइट गिव इट यू विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, तो वो सबसे पहले मदर, फादर, ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इट इज वेरी प्रेफरेबल फॉर यू टू फर्स्ट इन्फॉर्म द ट्रस्टेड पीपल एंड ट्रस्टेड पर्सन अराउंड यू। उनको इन्फॉर्म करो दैट माई आईडी हैज बीन हैक्ड। दिस हैज हैपेंड लॉट ऑफ टाइम विद माई कलीग्स, विद माई फ्रेंड्स, विद माई रिलेटिव्स, विद माई नेबर्स, दैट आई गेट कॉन्टैक्टेड उनके थ्रू कि प्लीज गिव अस 20,000, एंड देन मैं उनको कॉल करती हूँ कि इज इट यू, and then they tell it's no, it's not us, our id has been hacked, and it would have been happening around you as well. Then there are certain complaint mechanisms in India, जैसे कि साइबर सेल है। हर जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन के आपको आसपास आपको एक साइबर सेल मिल जाएगा आपके कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। देन देयर इज लोकल पुलिस स्टेशंस who can redirect you to the right forums. Then there is national cyber crime reporting portal. Then there is Shebox, अगर आपका कोई पॉश रिलेटेड केस है then you can have it on Shebox. Then there is internal committee for workplaces. Then there is women helpline 181. Then there is cyber helpline 1930. आप लोग जितनी भी अवेयर हो कि इस टाइम पे एक्टिवली ये सेशन सुन रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, क्योंकि हर वक्त ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हैंडी रहे जरूरी नहीं है। और कई बार जब हम किसी ग्रीवेंस में अटकते हैं हमारे दिमाग से ये इंफॉर्मेशन लैप्स हो जाती है, हम ये भूल जाते हैं चीजें कि ये रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है। तो जो सुन रहे हैं प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल ऑफ इट कि किनको कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, किस पोर्टल का क्या फंक्शनिंग है, एंड हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट ओवर इट। मूविंग अहेड, how to register a complaint on Shebox. Now, before we move ahead with it, I'll give a brief heads up as to what is Shebox, what is POSH complaints का हमने क्यों बनाया है Shebox, and why it is important. Basically, every company now is being asked to register themselves on Shebox when they have like 10 से ऊपर employees, because it is like a एक कॉमन सब्सिडरी जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लेन्स, किसी कंपनी की जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज है, डेटा है, सारा एक जगह पे आ जाता है। रिपोजिटरी है एक Shebox जहाँ पे हर कंपनी का डेटा एज टू हाउ मेनी कंप्लेन्स हैव बीन लॉन्च्ड, एज टू हाउ मेनी कंप्लेन्स हैज बीन सॉल्व्ड, एज टू हाउ मेनी कंप्लेन्स के ऊपर एक्शन हैज बीन टेकन अप, ये सब इंफॉर्मेशन हैज टू बी फिल्ड अप अपॉन ऑन Shebox accordingly upon reports. Now, this is important because एक जब हमारे एक सेंट्रल रिपोजिटरी रहती है कंप्लेंट्स की, देन देयर आर लेस चांसेस ऑफ बायसनेस। कोई भी कंप्लेन, आपकी कोई कंपनी अगर इफ इन केस यू आर हैंडलिंग, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रजिस्टर इट अपॉन Shebox, बिकॉज कोई भी फीमेल जब Shebox पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है और लॉन्च करती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि पहले देखा जाता है कि क्या वो कंपनी जिसके अगेंस्ट वो लॉन्च करी जा रही है कंप्लेंट, या जिसकी वो मेंबर है, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है Shebox से कि नहीं। अगर वो कंपनी Shebox से रजिस्टर्ड नहीं होती है, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज योर कंप्लेंट्स गेट्स रीडायरेक्टेड टू LC, विच इज योर लोकल कमिटी।
तो बाय डिफॉल्ट अगर आप शी बॉक्स से रजिस्टर्ड नहीं हो, भले ही आपकी कंपनी में एक आईसी एग्जिस्टिंग है, आपकी कंप्लेंट एलसी पे वो हो गई, रिडायरेक्ट हो गई, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रजिस्टर्ड अपॉन on SheBox as a company, for you to be handling your complaints which is there happening around in your own company. Now as a female आप शी बॉक्स पे कंप्लेंट कर सकते हैं, कभी भी कोई पॉश रिलेटेड कंप्लेंट होता है देन आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ शी बॉक्स एक नेशनल रिपोजिटरी है। अब क्यों आई थी ये मैंने आपको बता दिया, कैसे आई थी ये मैंने आपको बता दिया, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए रजिस्टर करना मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इस पे कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करते हैं, लेट अस डिस्कस दैट। I hope my screen is audible, sorry, visible, and I am audible. Yes, ma'am. Can someone confirm it? Yes, ma'am. Okay. Now, this is the portal that you open it. When you open up, you see this. This is the URL shebox.wcd.gov. जब आप इसको एक्सेस करते हैं इस URL को, you get redirected to this website. जब आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं, then what you have to do is, you see over here that when you scroll down, you see register your complaint. Do you see this? Can you all see this section of register your complaint? Yes, ma'am. Okay. Yes, When ma'am. you open it up, you have a disclaimer over here. You have to read it and proceed. What does the disclaimer say? That I understand that SheBox is a portal only for reporting the incidents of sexual harassment at workplace. I have read and understood the provisions of sexual harassment 2013, particularly section 14 and rule 10. I acknowledge and agree that all the information provided on the portal is accurate, complete, and truthful, and no information has been intentionally concealed, misinterpreted, and or falsified. Now you proceed after you reading the declaration. सेकेंड इज, जब भी आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हैं आपको एक नंबर मिलता है, तो जब आपको वो नंबर मिलता है तो जब सब्सिक्वेंट कोई कंप्लेंट होती है तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं वो नंबर फिलअप करके। बट आप जब फ्रेश कंप्लेंट कर रहे होते हैं तब उस फ्रेश कंप्लेंट में यू हैव टू ओपन अप रजिस्टर कंप्लेंट ऑप्शन। जब आप रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन ओपन अप करते हैं, गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, can we pick it up after the session, please? Okay. So, जब हम पोर्टल ओपन अप करते हैं, there are three bifurcations that come up. That is central government, state government, and private sector. तो जिनकी भी अगेंस्ट हम केस इनिशिएट कर रहे होते हैं, we have to identify कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है। Now, let us take private sector for example. ठीक है, मैं क्योंकि हाइपोथेटिकली आधी कंप्लेंट फाइल करके दिखाती हूँ आप लोगों को हाउ इट गोज अहेड। सो प्राइवेट सेक्टर मैंने डाला एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपके साथ कैसा टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करा गया है वर्क प्लेस पे एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वाज इन्फ्लिक्टेड टुवर्ड्स यू। यू कैन से फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस हुआ था कि नहीं हुआ था, शोइंग पोर्नोग्राफी, हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, implied और explicit promise। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसको आपको टिक करना पड़ेगा when you are filing a complaint at the SheBox portal। हाइपोथेटिकली अगर हम केस सिनेरियो के हिसाब से लेके चले तो let us fill up hostile work environment। Let us go ahead. Then, are you sure you have faced this kind of sexual harassment at workplace? Then you say yes. If in case you are sure of it, then you have to proceed with it.
वंस यू कम ऑन टू दिस कंप्लेंट फॉर्म, तो इसके चार स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज जब आप कंप्लेनेंट की डिटेल्स भरते हैं. सेकेंड स्टेज इज जब आप रिस्पोंडेंट या जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स भरते हैं. आपके साथ क्या ऑफेंसेस हुआ था आप उसकी कंप्लेंट भरते हैं. एंड देन यू गिव अ डिस्क्लेमर एज टू यस आई एम filling this form in my entire consciousness, and I've read it. I know what all consequences are going to follow after it. I give my declarations, and these are the four steps that follow around when I try to fill up a complaint. हम स्टेप 2 तक जाएंगे क्योंकि स्टेप 2 में हमारे को रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है. एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वी कैन नॉट फिल अप एनी रिस्पोंडेंट्स कंप्लेंट इस केस सिनेरियो के लिए, क्योंकि उनकी नेम पे वो कंप्लेंट रीडायरेक्ट हो जाएगी अदरवाइज. सो कंप्लेनेंट बिहाफ. सो नाउ जब आप पॉश एक्ट पढ़ते हैं, वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पॉश एक्ट में जो अग्रीव्ड होती हैं ओनली दे कैन फाइल अ कंप्लेंट. और अगर अग्रीव के बिहाफ पे कोई और कंप्लेंट करता है देन दैट पर्सन हैज टू बी अलाउड बाय द अग्रीव्ड टू फाइल द कंप्लेंट. उसकी इंफॉर्मेशन के बिना, उसके अलाउंस के बिना कोई सेकंड पर्सन उनकी बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकता. Second thing is you cannot file anonymous complaints over on Shebox. ये चीज आप साइबर crime.gov.in पे कर सकते हैं, बट आप शी बॉक्स में नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे यू हैव टू गिव आउट योर आइडेंटिटी, एंड इफ इन केस यू आर फिलिंग अप कंप्लेंट ऑन एनीवन एल्सेस बिहाफ देन यू हैव टू सीक अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन टू फाइल अप दैट कंप्लेंट. तो यही उन्होंने आस्क करा है दैट कंप्लेनेंट बिहाफ, कि आप किसके बिहाफ में कर रहे हो, आप खुद के बिहाफ पे कर रहे हो या किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो. तो इन दैट केस आप सेल्फ है, अगर आप खुद से कंप्लेन कर रहे हैं तो देन यू राइट इट अप सेल्फ. अगर आप किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप एनी अदर लिखिए. अगर आप एनी अदर लिखते हैं तो देन 3 क्लॉजेस अगेन कम अप. आपको उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रिलेशन है उनका, आपका उनके साथ, आप उनके फादर हैं, आप उनकी मदर है, आप उनके फ्रेंड है, या आप उनकी फैमिली है. देन आपको नेम लिखना पड़ेगा जिनके बिहाफ पे आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं. देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू सीक एक्सेप्टेंस एंड अलाउंस फ्रॉम दैट पर्सन. इन दैट वेज आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी एंड यू हैव टू अपलोड इट इन अ पीडीएफ फॉर्म सेइंग एंड स्टेटिंग कि मैं कंप्लेनेंट हूं एंड आई अलाउ सो एंड सो पर्सन टू फाइल अ कंप्लेंट ऑन माय बिहाफ. तो उसमें आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी. अब मान के चलिए अगर मैं सेल्फ में लेके चलती हूँ, तो सेल्फ में जब व्हेन आई क्लिक अपॉन सेल्फ देन इन दैट केस यू हैव टू राइट इन व्हाट कैपेसिटी was the offense committed against you. Were you visiting a workplace, were you working in that, or are you a student? Now one very important question that arises from it is कि अगर स्टूडेंट लिखा हुआ है तो हाउ कम पॉश इज कमिंग इन टू प्ले, बिकॉज पॉश तो वर्क प्लेस को हाईलाइट करता है. देन हाउ कम स्टूडेंट इज देयर एज एन ऑप्शन? इट्स बिकॉज यूजीसी गाइडलाइंस में स्टूडेंट कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट रिलेटेड टू पॉश कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर ओन फैकल्टी मेंबर्स, उनके कलीग्स के रिलेटेड. अगर उनको कोई भी ऐसा इंटेंशन लगता है किसी भी पर्सन के थ्रू जो उनके किसी भी कंडक्ट को हैम्पर करता है, देन दे कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अंडर द यूजीसी गाइडलाइंस. तो भले ही स्टूडेंट वर्क प्लेस कैपेसिटी में नहीं आता, बट दे टू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन पॉश एंड शी बॉक्स, राइट. तो इसलिए स्टूडेंट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ओवर हियर. तो मैं हाइपोथेटिकली लेके चलती हूँ दैट आई एम विजिटिंग अ वर्क प्लेस. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट? यू फिल इट अप, जो भी आपका नेम है XYZ लिख देते हैं यहाँ पे. देन फोन नंबर पॉपअप करेगा, सो यू जस्ट राइट द फोन नंबर एंड देन यू सेंड अ give a OTP जो कि वेरिफिकेशन OTP होता है which comes upon your phone number. Let's wait for 1 to 2 minutes. OTP आता है, then I'll fill it up. Once your mobile number is verified, you get redirected to the second step, which is the details of the workplace where the incident of sexual harassment has occurred. हम यहीं तक जाएंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख देते हैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं. इस केस स्टडी में अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हाइपोथेटिकली फिलअप कर दूंगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को रीडायरेक्ट हो जाएगी मेरी कंप्लेंट, एंड आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन.
तो मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूंगी क्या फंक्शनिंग है, कैसे होता है, बट देन द केस स्टडी इज लिमिटेड टू दिस step itself. Now you have to fill up what state the complaint, the offense has occurred upon. Then you say अगर दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली में लिखिए, हरियाणा में हुआ है तो आप हरियाणा में लिखिए, छत्तीसगढ़, वॉट एवर स्टेट यू राइट, उधर की ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट इधर आ जाती है व्हेन यू सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट। यू सी, मैंने छत्तीसगढ़ सिलेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट आएगी। छत्तीसगढ़ में अगर मैंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया तो बिलासपुर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इधर आ जाएंगी। इधर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी मैं उसको क्लिक करूंगी अगर, और मान के चलिए वो ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में नहीं है, तो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू सी अदर्स ऑप्शन, आप अदर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास सिलेक्ट ऑफिस का और वो आ जाएगा। एंड जब आपके पास सिलेक्ट ऑफिस का आता है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स खुद से भरने के लिए वो बोलता है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन खुद से भरिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द ईमेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट स्टेट डज दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉल अंडर, व्हाट डिस्ट्रिक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर, एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट वर्क प्लेस. So that all has to be filled up by you when you select the others option. तो anonymity का तो यहाँ पे कोई चांस नहीं रहता. देन सब्सिक्वेंटली इसके आगे के पर्सपेक्टिव में क्या होता है, आगे के स्टेप्स में क्या होता है कि आप रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन भरते हैं। आप लिखते हैं कि आपके साथ किसने ऑफेंस क्रिएट, आपके ऑफेंस किया। थर्ड स्टेप इज दैट, तो आप उसमें लिखते हैं दैट सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो मैनेजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लिक्टेड सर्टेन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेंट्स अपॉन मी व्हिच हैज मेड मी अनकंफर्टेबल. श्रद्धा रेड्डी जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच. तो आप वो इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली वो उनको रीडायरेक्ट हो जाती है. अब इसका जो फोर्थ स्टेप है दैट इज योर डिक्लेरेशन. यू गिव योर डिक्लेरेशन एज टू व्हाट हैपेंस, कि मैंने अपनी फुल होश आवाज में ये कंप्लेंट दिया, फुल कॉन्शियसनेस में दिया है, दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड. आप अपनी कंप्लेंट की डिस्क्रिप्शन देते हैं एज टू व्हाट हैपेंड विद यू राइटली देन एंड देयर, ये सब देते हैं आप इंफॉर्मेशन. एंड देन सब्सिक्वेंटली यू गेट अ नंबर जनरेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर आप उसका स्टेटस भी अवेल कर सकते हैं. अब स्टेटस अवेल कर लिया, हमने शी बॉक्स में कंप्लेंट कर दी. व्हाट हैपेंस वंस यू फाइल अ कंप्लेंट अपॉन ऑन शी बॉक्स, द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज आपकी जो कंप्लेंट होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजर जो आपकी कंपनी है उसके पास रीडायरेक्ट हो जाती है. अब मान के चलिए वो आपकी कंपनी शी बॉक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है, देन आपकी कंप्लेंट एलसी पे रीडायरेक्ट हो जाती है. एलसी इज द लोकल कमिटी, लोकल कमिटी पे रीडायरेक्ट हो जाती है. और अगर वो लोकल कमिटी पे रीडायरेक्ट नहीं होती और आपकी कंपनी शी बॉक्स में रजिस्टर्ड है तो वो आपकी शी बॉक्स के आईसी मेंबर की डिटेल्स में से प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे रीडायरेक्ट हो जाती है. एंड देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टेक्स कॉग्निजेंस अबाउट दैट कंप्लेंट. और कॉग्निजेंस कैसे लेता है कि जिस दिन से उनको कंप्लेंट मिली तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजना पड़ता है. 7 दिन के अंदर वो जब रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजते हैं तो रिस्पोंडेंट को 10 दिन में उसका रिप्लाई देना होता है. 90 दिन के अंदर उनको वो पूरी कंप्लेंट रिड्रेस करनी होती है और 10 दिन में रिपोर्ट देनी होती है. और उस रिपोर्ट के 90 दिन के अंदर अंदर उनको उसके ऊपर एक्शन भी लेना होता है. और 60 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है और 90 दिन के अंदर अगर उसको कोई अपील लेके जानी होती है उस पर तो वो अपील लेके जा सकता है. So this is how the portal usually works when you talk about the SheBox portal. Now we will discuss about how the cybercrime.gov government portal works. Give me a second, I'll come to my PPT. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Now, understanding the cybercrime complaint portal and why was it introduced? It was introduced back in 2019 and 2020. Once they felt like there needs to be a central repository for complaints of this as well. Cyber complaints के लिए भी repository होना चाहिए. And जो हमारा cyber crime government portal है, that
इज अंडर इंडियन क्राइम साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C कहते हैं, इनके अंडर वर्क करता है। ये भी रिपोजिटरी मेंटेन करता है और आपके साइबर साइबर जो कंप्लेंट्स होती है उसका हैंडल करता है। एंड इसकी जो रिपोर्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट गेट्स redirected to the police officials, to the people who takes cognizance of it, वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट हो जाता है। Now, how to file a complaint and how to register a complaint upon cybercrime.gov.in. Let us understand that now. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Right. So once you want to file a complaint, so what happens is, ये मैंने पहले से थोड़ा सा खोल के रखा है, क्योंकि मेल वो वेबसाइट थोड़ी स्लो थी. How will I try to do it again with you all? Once you open this portal, this goes by the URL cybercrime.gov.in. You open up this URL, and once you open up this URL, you get redirected to this website. Once you get redirected to this website, what you have to do is, do you see register a complaint option over here? Am I audible? Yes, ma'am. Can you also register a complaint option? Yes, ma'am. Now, in this register a complaint option, आप देखेंगे स्पेसिफिकली यहाँ पे एक कैटेगरी दी गई है जिसमें हमने ये लिखा हुआ है विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर साइबर क्राइम। तो इसमें क्या है, कैटेगराइजेशन है। एंड वंस यू ओपन इट अप एंड यू कम अपॉन दिस, यू सी दैट इट अलाउज यू टू रजिस्टर अ कंप्लेंट अनोनिमसली एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू रजिस्टर अ कंप्लेंट नॉर्मली एज वेल। तो यहाँ पे आपके अनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द शी बॉक्स। तो यहाँ पे ओपन करेंगे एंड यू विल राइट, अगर यहाँ पे मुझे कोई विमेन रिलेटेड वो करना है तो आई विल ओपन इट अप, register a complaint. Then there's 3 type of categories. First is women related crime, financial fraud and other crime. I will say I want to report anonymous for women and child rights. Learn about cybercrime. So this website gives you a little sneak peek as to what cyber crimes are there in India. But then if in case you want to file a complaint right away, then you file a complaint over here. Then again, there's some short sort of disclaimer over it. You read it and you accept it. इसमें 3 steps होते हैं. The 3 steps are complaint and incident details, the suspect details, and the preview and submit details. तो complaint and incident details में you can fill up what happened upon with you over on social media. तो किसी ने सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट आपसे शेयर करा, जैसे इधर लिखा हुआ है, देन सेक्सुअली ऑब्सीन मटेरियल आपसे शेयर किया, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर किया, आपसे शेयर किया, आपका किसी को शेयर किया, या चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज मटेरियल शेयर किया, आप इनमें से कोई भी कंटेंट क्लिक करिए। तो मैं आई एम गोइंग टू गो इन विद सेक्सुअली ऑब्सीन मटेरियल। Then it asks you approximate date and time of the incident and receiving and viewing of content. What happened? So let hypothetically say आज हुआ। ऐसे भी बोलते हैं, बस सोनी तो ट्रैक्टर चलाती है। ट्रैक्टर। Then you have to say अगर there is a reason for delay in reporting, you write it down. अगर नहीं है, then you do not write it. क्योंकि ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। वॉट एवर हैज रेड स्टार ओवर इट वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसपे स्टार नहीं है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। तो इसको अगर आपके पास डिले नहीं है तो देन लेट इट बी। देन यू राइट अ स्टेट, आई एम गोइंग टू गो इन विद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, लेट अस हाइपोथेटिकली चूज नॉर्थ ईस्ट। देन पुलिस स्टेशन, लेट अस हाइपोथेटिकली चूज जफराबाद। Then where did the incident occur? Let us hypothetically say Snapchat. Then you see Snapchat ID and URL मांगता है।
तो अगर आपके पास सामने वाला का, सो दिस इज कंप्लेंट एंड इंसिडेंट डिटेल्स. सो वंस यू आस्क गेट आस्क्ड कि स्नैपचैट आईडी एंड यूआरएल क्या है, you do not have to fill up your Snapchat ID and URL. If in case it is possible, try to fill up other person's Snapchat ID and URL. What type of media? So chat media. अगर URL है तो you can write whatever it is there. Then supporting evidence and upload material. अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, URL है, anything of that sort, you put it up over here. Please provide any additional information. ये करने के बाद let us see whether it allows us to move ahead. Let us do this, no worries. Will not file a complaint. आपने कोई पिक्चर डाला एंड देन यू एड इट अप, यू सेव एंड नेक्स्ट. आप इस पे अपना इंफॉर्मेशन लिखेंगे. सो इसे यू कैन से दिस इज अ hypothetical. So I'm going to just write it hypothetical case study. आप इस पे जेन्युइन अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं. It has to be of 200 letters. So it's not of 200 letters. Don't worry. Then second step that comes upon is your report anonymously. You can report it anonymously, your suspect details. तो आप जिनको सस्पेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू राइट इट्स डिटेल्स. तो आपको सस्पेक्ट का नेम क्या है, सस्पेक्ट का जो भी आप दे सकते हैं वो यू कैन गिव इट अप. To again, you can add it in as a PDF, as a JPG, as a PAG, and then you upload it up over here. यहाँ पे भी आप upload कर सकते हैं. Any other information that you want to do. Then preview and submit करते हैं. When you preview your entire complaint and then you submit it. उसके बाद एक number generate होता है and that number can be accessed to track your complaint. Accordingly, financial fraud में भी ऐसा ही होता है. When you register a complaint, you have to file a complaint, accept the disclaimer. Then when you move ahead, you have to make a citizen login. और जब आप फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड रहता है. इन्होंने बोला इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल फ्रॉड प्लीज कीप फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेडी. नेम ऑफ द बैंक, वॉलेट, मर्चेंट, 12-digit transaction ID, rate of transaction, fraud account, all of this has to be kept handy by you. तो अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो देन यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट और अपनी अवेयरनेस के लिए एक्सेस कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर जस्ट अ मिनट. आप इसको एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड रहती है. Right. So this is how you can file a complaint over on National Cyber Crime Reporting Panel. Then you have to register a complaint over here, file a complaint if it's any sort of other cyber crime, and then accordingly जब आप citizen login कर लेते हैं, these all has to be kept handy by you when you're filing any sort of other cyber related crime as well. So this is all that I had to share with you all during this session. If in case if in case the organizers allow, if there's any sort of question that has to be asked, please go ahead. I hope you all enjoyed the session. मैं चाह रही थी monotonous ना रहे, and I wanted it to be interactive. However, I did not receive much interactions from the audience. However, I just wanted to keep it interactive. I hope you all liked the session. कोई question है तो please, if organizers allow.
Hi, Manita. Do you want to take the session ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If there are any questions, they can ask. And there's one question in the chat box Right. asked previously that, ma'am, why Shebox portal site is HTTP and why not HTTPS? Okay. So basically, um, understandably, that HTTPS is a locked box complaint. And whatever comes upon on HTTPS is like a locked box. आपकी जो भी information होती है does not get accessed by any other person. And when it's HTTPS, it's like any plain text. Anyone who's using the same Wi-Fi as you can access the complaint. Sorry, access the details. It's like just a plain text. उनको पता चल जाता है कि that you opened up Shebox and so and so. Now coming upon, I believe Shebox uses HTTPS. Let us confirm. Let us cross-check this information. I believe Treebox uses HTTPS, dear. HTTPS is like a locked box and it keeps all of your information secret. It's like a locked box. Not all of your details goes out. Whosoever uses the same Wi-Fi as you, it does not go out to that person. But then, if in case you have this query, let us cross check. Give me a minute. Right. So coming on to your question, Shebox has HTTP because see, not all the complaints that you file up on Shebox gets is a part of a public domain. Your complaints are a part of you, are kept between you and the person to whom the complaint is being lodged to, being redirected to, and it is not a part of the public information until and unless you openly publish it, you openly keep it to the LC or IC committee. It is not a part of a public domain. Only the website is of public domain, and it gets that you have opened up the website using the same person to the person using the same Wi-Fi as you. However, whatever or what all information you put it up on Shebox is not a part of public domain. You remember that. So nothing that you put it up on Shebox is going to be accessible by me or by any person who is there using the same computer as you. Is going to be confidential to you. Any other question, Maneta? No, ma'am. There are no other questions in the chat box. No worries. If in case you want to wind up this session, I'm okay by it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for patiently answering the question. And today's session helped us understand the legal awareness is not only for lawyers or professionals, it is something every individual should know how to protect themselves around them. Your guidance on POSH and POSCO workplace safety and right-based awareness has truly encouraged all participants to become more aware, more responsible, and more confident in navigating both digital and professional spaces. With that, we come to the end of day 4 of Cyber Shakti Digital Spaces and Cyber Awareness for Women. On behalf of Naksh Foundation and Project Cyber Shield, we extend our heartful gratitude to ma'am for delivering such an impactful, informative, and inspiring session. Your insights on legal awareness, women's rights, workplace safety, and child protection have incredibly been vulnerable for all of us, valuable for all of us, and we truly are grateful for your time and guidance. We request all participants to kindly fill out the post-assessment form from using the QR code displayed on your screen. Until then, stay aware, stay informed, and stay empowered. Thank you, everyone, and have a wonderful evening. Thank you so much to Naksh Foundation and its organizers for having me around. I would have loved hearing something from the audience as well. However, I understand that it's little late. Next time, if in case you all catch up again, we would like to have it that the audience also come up and ask more questions and get it more interactive with me.
However, I've loved this session and it was really interesting for me to speak upon this topic today. Thank you so much.